Hello my gorgeous people, I am Titli and welcome back to my channel. So today's topic is a little more serious than usual, and today I'll be talking to you about how Indian brands are fooling us. So I'll be telling you all the shady practices and dishonesty that the brands are showing towards us, towards the customers, and we shall not fall for it. So without any further ado, let's get started with today's video. And before that, if you're new here, please take a moment to subscribe to the channel, like this video if you like it. Do not press the like button if you don't like it. It's absolutely okay. Only if you like it, then only press the like button. And also this makeup look is already live on my Instagram. If you guys have not seen it, please go watch it. It's Titli Mukherjee Official, and I post almost daily, and I post quite a few tutorials on there which you will not be seeing here on YouTube. So if you want to learn more about me and my behind the scene actions and makeup, then please go follow me there. And now let's chalu karte apna video. I already know that the made in India brands are always trying to do sneaky things, are lying to us, and problem is with skincare and makeup, because those are the things that go onto your face, and usme kya kya problems hai wo aap jab janoge, I don't think you will be ever be willing to go back to Indian प्रोडक्ट्स जो मेड इन इंडिया बोलते हैं अपने आप को, ऑर्गेनिक, सेफ टू यूज़, पैराबिन फ्री, एसएलएस फ्री, all those sorts of things. But I am not talking about all made in India brands. I am only talking about 90% of the brands, yes, because 90% of the brands follow these things, and which should not be followed obviously for obvious reasons. So मैंने recently श्वेता का एक वीडियो देखा, and उस वीडियो में she was raving about all the Indian homemade brands and skincare brands, and वहाँ पे उनके किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था नीचे कि आप जो ये सब प्रमोट कर रहे हो, क्या आपको पता है कि ये actually companies license hold करती है क्या नहीं. And after that she also made a video regarding that, which is very nice of her to do, but and here is my 2 cents on it. तो you guys will be shocked to know that बहुत सारे स्किन केयर ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो लाइसेंस अपना नहीं करते हैं, एंड ऑल्सो यू विल बी इवन मोर शॉक्ड टू नो दैट लाइसेंस फीस इतना ज़्यादा नहीं होता है. सो इफ अ ब्रांड इज टेलिंग यू दैट लाइसेंस फीस बहुत ज़्यादा होता है एंड वी आर जस्ट अ न्यू ब्रांड एंड वी कैन नॉट अफोर्ड इट, इट्स ऑल कंप्लीट BS, एंड वो आपसे झूठ बोल रहे हैं टू सेव दैट कॉइन. So the brands that I'm talking about, they do not have any license and they are still successfully running their business. And especially now जब भी ये आत्मनिर्भर वाला बात आ गया है इंडिया में, तो अभी और भी there are upcoming brands and also the previous brands that were already successful, अभी वो लोग और products ला रहे हैं. They are promoting their brands more than ever. You will be seeing many more collaborations on YouTube. बहुत सारे high tier YouTubers जो है वो उसको sell करेंगे, आपको collaborate करते हुए दिखेंगे, आपको बोलेंगे कि बहुत अच्छा है and आपको खरीदना चाहिए. तो जिसका आई विल नॉट से कि आप मत खरीदो, बट बिफोर यू परचेज यू मेक श्योर कि आप, मैं आपको आज जो भी डिटेल्स आपको दे रही हूँ, आप वो सारे डिटेल्स प्लीज़ अपने दिमाग में रख के, एंड देन यू मेक द डिसीजन वेदर यू वांट टू परचेज इट और नॉट, एंड नॉट ब्लाइंडली बिलीविंग ऑन योर फेवरेट यूट्यूबर, बिकॉज I am sorry to say, but maximum of the top tier beauty influencers, I'm not talking about 100% of them, but I'm talking about maybe 95% of the YouTubers, top tier YouTubers, are not really telling you the full truth. Actually, they don't even tell you when they're doing a paid collaboration. I know, and I just want to say it loud, the name of that blogger जो मेरे दिमाग में first आ रहा है इसके बारे में भी सोच के, and that person, like she will post 100 photos or videos on her Instagram, and she'll mention on probably 5 of her posts that the post is sponsored or in collaboration with a brand, and for the other 95 posts she'll not even mention that. So there are many bloggers, those who are doing this, and तो बहुत जन call out भी कर रहे हैं, but still they are like, no, we don't give a damn, हम कैसे चलाएंगे अपना घर, we have to earn from this. And of course it is true that they have to earn, but then you can be truthful in earning, right? तो आप बोल सकते हो कि it is a paid collaboration, or you are getting paid for it, or the products you have received are in PR. तो ये सब डिटेल्स तो आप दे ही सकते हो. दैट विल नॉट अफेक्ट द मनी दैट विल बी गोइंग इनटू योर बैंक अकाउंट्स, राइट? तो उतना तो आप क्लैरिटी, उतना आप ट्रांसपेरेंसी रख ही सकते हो, बट सैडली बहुत सारे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स ये सब नहीं करते हैं. Anyways, let's talk about the brands now. So the brands are not being transparent with us, and we as consumers deserve that much. हमको एटलीस्ट वो ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि हम जो अपने फेस पे लगाएंगे, अपना बीट स्किन केयर और बीट मेकअप, दैट हैज़ टू बी अंडर लाइसेंस. एंड ऑल्सो आई एम so annoyed by the companies जो सिर्फ आपको की इंग्रेडिएंट्स देते हैं, एंड दे डू नॉट मेंशन एनी अदर इंग्रेडिएंट्स दैट आर इन द प्रोडक्ट. तो वो कुछ भी हो सकता है, एंड वो कंपनी आपको बताना नहीं चाहता. आई डोंट नो वाई आपको बताना नहीं चाहता है.
maybe because of the shady practices, or maybe they know that the ingredients that they are putting in their products are not really nice. मैं जब भी कुछ खरीदती हूँ, I always make sure I read the full ingredients list, and उसके बाद ही मैं कुछ खरीदती हूँ. जहाँ पे लिखा रहता है 2-3 चीज़ें लिखी रहती है कि सिट्रिक एसिड हो गया या लैक्टिक एसिड हो गया, 2-3 चीज़ों से मैं कभी कुछ नहीं खरीदती हूँ. एंड आई विल ऑल्सो अर्ज यू टू डू द सेम, बिकॉज आपके पास और भी बहुत ऑप्शंस हैं इन इंडिया. बिकॉज आजकल इंडिया में इंडियन ब्रांड्स की जितनी ग्रोथ हो रही है, उतने ही बाहर के बहुत ही फेमस ब्रांड्स आ रहे हैं. सो यू कैन गिव देम अ ट्राई इफ़ यू डोंट फाइंड इंग्रेडिएंट्स लिस्ट इन आवर इंडियन स्किन केयर ब्रांड्स. आई नो वी ऑल हैव गुड इंटेंट टू सपोर्ट आवर ओन कंट्री, ताकि हमारे सबको इक्वली ग्रोथ मिले एंड हम आगे बढ़े एज अ कंट्री. बट देन गाइज यू नीड टू नो कि आप जो जिनको पैसा दे रहे हो एंड जो प्रोडक्ट आप उनसे ले रहे हो, वो प्रोडक्ट एक्चुअली आपके लिए सेफ है कि नहीं. बिकॉज दिस इज़ नॉट अ कपड़ा, लाइक दिस इज़ नॉट अ क्लोथिंग पीस, दिस इज़ नॉट अ ज्वेलरी पीस. सो ये आपको अपने स्किन पे लगाना है, एंड इट विल गो डीप डाउन इन योर स्किन, एंड यू एक्जैक्टली नीड टू नो व्हाट द ब्रांड्स आर पुटिंग इनटू योर मेकअप, योर स्किन केयर, एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दैट कि आप कुछ भी कहीं से भी प्रोडक्ट्स ना खरीदे. बिकॉज आई हैव बीन सीइंग प्रोडक्ट्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ब्रांड्स पॉपिंग अप लाइक ऑन Instagram, on Facebook, एंड इट्स लाइक घर की बनाई हुई चीज़ें वो लोग बेच रहे हैं, एंड देन दे आर सेइंग कि इट्स ऑल ऑर्गेनिक, इट्स ऑल इको फ्रेंडली, इट्स ऑल पैराबेन फ्री, देयर इज़ नो प्रिजर्वेटिव्स. बट देन गाइज लेट मी टेल यू, प्रिजर्वेटिव्स नहीं मतलब वो प्रोडक्ट बहुत जल्द ख़राब होने वाला है. सो वो प्रोडक्ट आप लेके क्या करोगे? लाइक जनरली जो भी किचन आइटम से बने हुए रहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं विद इन 7 days, 14 days, मे बी अ मंथ. उससे ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट नहीं चलता है. हो सकता है कि आप मोल्स सीधा ना देख पाओ आफ्टर 15 days और 30 days, बट देन आप 2 महीना या 3 महीना बाद वो मोल्स एक्चुअली अपने प्रोडक्ट पे देखो. बट देन मोल्स आप देख रहे हो आफ्टर 2-3 months, बट देन वो मोल्स जो स्टार्ट हो जाता है वो आपका शुरू हो जाता है आफ्टर 15 days, आफ्टर 30 days एट मैक्स. सो कोई भी प्रोडक्ट फर्स्टली इवन इफ 2-3 महीनों में वो ख़त्म होता है तो भी आप उसको यूज़ करके ख़त्म नहीं कर पाओगे फर्स्टली. सेकेंडली वो प्रोडक्ट्स कोई भी नेचुरल चीज़ों से बनाई हुई जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं दिया हुआ है, वो आपको मैक्सिमम 15 दिन से ज़्यादा चल नहीं सकता है. सो इन बोथ केसेस यू आर वेस्टिंग द मनी. एंड ऑल्सो जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं हैंडमेड बोल के, ऑर्गेनिक बोल के, वो आप अपने किचन में भी कर सकते हो, राइट? सो यू डोंट नीड टू गिव देम द मनी, एंड दीज पीपल आर नॉट चार्जिंग लेस मनी. आई नो फ्यू brands both on Facebook and on Instagram, and they are quite famous, and I would just like to say that they are not the brands for you. Please do not buy from them. Please do not spend your hard-earned money on them, because those are really not worth it. आपको firstly, they will never give you full ingredients list. And once I asked that lady जिनसे मैं लेना चाहती थी, so I asked her कि आप मुझे please full ingredients list दो, and that person told me कि आपको क्यों ingredients list चाहिए, and then she blasted my chat on another Facebook group saying कि ये लड़की सिर्फ ingredients जानना चाहती है, she doesn't want to buy, and why should I tell her the ingredients and all of those things. And I was like, man, I was just asking you the ingredients list because I am buying it from you. So if I want to buy it from you, then I need to know my ingredients list, because I don't know you, I don't trust you. If you don't give me your full ingredients list, and if you only tell me 4 good things that you have in your product and बाकी सारे products are complete nonsense या rubbish, so I'm not going to purchase from you. So that person literally tried to humiliate me in Insta, on Facebook, FB page, and बहुत सारे लोग उधर उनको सपोर्ट भी कर रहे थे. हाँ, ऐसे लोग तो आते हैं, ये लोग दे जस्ट कम हियर टू डिस्टर्ब यू एंड ऑल दैट. एंड आई वाज लाइक, ओ मैन. एंड आउट ऑफ ऑल दोज पीपल ओनली one person I think stood up for me, and that person told me, but she's not asking for anything bad. I think if she's asking for the ingredients list, then I think you should give it to her. Like, it's not a big deal, because if this is your business and if you are telling your products have certain claims and she wants to know कि वो claims आप कौन से ingredients पे base करके बोल रहे हो, then it is not a bad thing, I guess. So after all, anyways, so after all those things, I never contacted her. Obviously I'll never buy from her, and obviously I'm not buying from any of the Insta or FB sellers ever again, and I'm not even interested, to be honest. I don't even ask them the ingredients list now, because I know ऐसा ही कुछ वो करेंगे and they will not give it. They are scared कि उनकी सच्चाई सबको निकल जाएगी, बिकॉज वो लोग जो अच्छा चीज़ें 2-3 अच्छा चीज़ें अपनी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में बताते हैं कि ये बहुत अच्छा है, एंड उसके अलावा और कुछ भी उसमें अच्छा नहीं है, तो वो शायद निकल जाएगा. तो इसलिए मैं अभी तो बाय करना छोड़ दिया. आई ओनली बाय फ्रॉम रेप्यूटेड ब्रांड्स, एंड आई ऑलवेज टेल यू गाइज, बी इट मेकअप, बी इट स्किन केयर, ऑलवेज गो फॉर ब्रांड्स. लाइक कोई भी जो सस्ता का हुडा, चीप हुडा ब्यूटी का जो आपको रेप्लिकास मिलता है, या फिर
काइली का जो आपको रेप्लिकास मिलता है या कोई भी, तो वो सब ब्रांड्स के लिए आप प्लीज़ मत जाओ. इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, प्लीज़ आप उसको पैसा जमा करो, देन बाय इट. लाइक इफ़ यू वांट टू बाय अ हुडा एंड इफ़ यू कैन नॉट रियली अफोर्ड इट, देन यू कैन गो फॉर ColourPop और यू कैन गो फॉर सम अदर ऑल्टरनेटिव ब्रांड, क्योंकि बहुत सारे आजकल ब्रांड्स हैं. तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपको एक ही ब्रांड के ऊपर आपको जाना पड़ेगा कि वही प्रोडक्ट सिर्फ उसी के पास मिलेगा. उसके आसपास का प्रोडक्ट आपको बाकी और ब्रांड्स में मिल जाएगा एंड काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा. और यू कैन सेव योर मनी एंड देन इन्वेस्ट इन वन प्रोडक्ट एट अ टाइम. बट प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू गाइज, डू नॉट परचेज फेक प्रोडक्ट्स, डू नॉट परचेज अनब्रांडेड थिंग्स. ऑलवेज बाय फ्रॉम गुड ब्रांड्स. बीट मेबलिन भी बहुत सस्ता होता है, बट वो एक ब्रांड है एंड आई कम्प्लीटली ट्रस्ट दैट ब्रांड. बीट लॉरियल, ColourPop, कलर बार, जो भी है, ये सब मेकअप के ब्रांड्स हो. एंड फॉर स्किन केयर जो भी ब्रांड्स आप लोग यूज़ करते हैं, आई प्रेफर बॉडी शॉप, आई प्रेफर कील्स, आई प्रेफर फेस शॉप. तो ये सब फेस शॉप काफ़ी इनएक्सपेंसिव है मुझे लगता है उसके हिसाब से, बॉडी शॉप एंड कील्स के हिसाब से. So you can give those things a try, right? तो आप उनके बारे में जानते हो, the whole world knows about them, they have their practices in place, they have the licensing, so it's always better to buy from well-known brands. Also another thing that I am really shocked to see, ये मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था, this is something new that I have noticed, कि ब्रांड्स के वेबसाइट में अगर आप जाओगे, जो भी इंडियन ब्रांड्स हैं उनके आप वेबसाइट में जाओगे एंड यू क्लिक ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस बटन, आप उसमें देखोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द ब्रांड्स बट मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स, आप उसके नीचे देखोगे कि उनका टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो प्रोडक्ट आप पे सूट कर रहा है कि नहीं, आपको पसंद आता है कि नहीं, वो आपको कुछ रिएक्शंस देता है कि नहीं, कुछ भी हो. इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम दैट वेबसाइट देन वो आप सब कुछ हाँ बोल रहे हो कि कुछ भी आपके साथ हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू द कंपनी. आप उनको कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज इट वॉज योर डिसीजन टू परचेज इट. दे आर नॉट फोर्सिंग यू, सो दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट्स दैट they are selling. Also they are not providing you with full ingredients list, so I am not sure कि why will someone buy from them. They are completely safeguarding themselves and they are not even thinking about the customers, the clients. आप लोगों के बारे में सोचा भी नहीं जा रहा है, so आप लोग अपने बारे में सोचो before giving your money to such brands. And also बहुत सारे जन बोलते हैं कि natural is good, parabens is bad, but guys do you know parabens is a form of preservative and preservative आपके product को preserve करता है, correct? So all the brands जो भी high end brands है सब कोई preservative use करते हैं, तो वो लोग पागल नहीं है कि वो लोग preservatives use कर रहे हैं. वो लोग preservatives use कर रहे हैं ताकि उसमें molds grow ना करे. And if the company is saying that this product is natural, homemade, organic and we do not put any preservatives because it is bad for your skin, then you should know that this product जो भी आप खरीद रहे हो, इट हैज़ टू बी मेड दैट डे इटसेल्फ. जब ये आप ऑर्डर प्लेस करो तभी वो बनाना पड़ेगा एंड वो आपको 15 दिन के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा. अदरवाइज कोई चीज़ तो 15 दिन भी नहीं चलती, विद इन 7-10 डेज वो ख़राब हो जाता है. तो मैक्सिमम शेल्फ लाइफ उसका 15 डेज होगा एंड उसके बाद अगर आप यूज़ करोगे तो शायद आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी स्किन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, बट लॉन्ग टाइम पे आपकी स्किन को वो डैमेज कर रहा है. अगर आप 15 दिन के बाद भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो आपके अंदर स्किन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहेंगे जो आपको बहुत लेट अपने लाइफ में पता चलेगा एंड यू विल रिग्रेट इट एंड you won't be able to do anything about it because तब तक डैमेज हो चुका होगा. Please do not fall for these marketing tactics. Next point is बहुत सारे आपको स्किन केयर ब्रांड्स बोलेंगे कि they are स्किन केयर ब्रांड्स एंड बोथ कॉस्मेटिक ब्रांड्स आपको बोलेंगे कि they are FDA approved, but do you know FDA approved मतलब FDA is only approving the colors that you are using in your product. FDA doesn't regulate the ingredients that the brands are putting in the product. So for someone who doesn't know what FDA actually regulates, आपको लगेगा कि हाँ उसने तो बोला है कि it's FDA regulated, तो हाँ मतलब it is completely safe to use, but it is not that. As I told कि FDA only color आपको regulate करके देगा, it will not regulate the ingredients that the company are putting in the products. The another point that I've noticed is कि कोई ब्रांड्स अपने वेबसाइट पे तो फुल अपना इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मेंशन करते हैं, बट जो वो लोग नाइफ का में सेल करते हैं या अमेजन पे सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं, वहाँ पे उनका कोई भी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट नहीं दिया जाता है. एंड आई डोंट नो व्हाई दैट इज़ द केस एंड why is Nykaa not telling anything to them, because they should. एंड ये मैंने रिसेंटली देखा है डॉट एंड की प्रोडक्ट्स में, जिसका रिव्यू आप लोग बहुत दिनों से मांग रहे हो एंड आई एम ट्राइंग दैट प्रोडक्ट आउट, सो इट इज़ कमिंग नेक्स्ट वीडियो में, शायद दैट विल बी माई नेक्स्ट वीडियो ऑन द डॉट एंड की प्रोडक्ट. सो स्टे ट्यून्ड एंड बी सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको पता चले कि वो वीडियो कब आ रहा है. बट या सो एज आई वाज सेइंग कि वो लोग पूरा अपना इंग्रेडिएंट्स लिस्ट अपने बाकी जो भी मार्केट प्लेसेस पे वो लोग सेल कर रहे हैं वहाँ पे मेंशन नहीं करते. दे ओनली मेंशन इट ऑन द
on their own website. So अगर आप उधर से खरीद रहे हो, नायका से खरीद रहे हो फॉर एग्जाम्पल, then you don't know the ingredients list. और अगर आपको नहीं पता कि वो कंपनी का वेबसाइट में है कि नहीं, एंड आप उधर जाके चेक नहीं किया, या फिर आपको जहाँ पे आप देख रहे हो आपको उधर ही मिलना चाहिए, आपको उधर ही देखोगे, राइट? Why will you go to another website to check the ingredients list and then come again back here to place your order? I don't know why they think that is okay, because in my opinion that is completely not okay. अगर आप कुछ चीज़ बेच रहे हो तो आप जहाँ जहाँ भी बेच रहे हो वहाँ पे हर जगह पे आपको अपना इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मेंशन करना चाहिए. एंड आई एम इवन मोर शॉक्ड के इन्फ्लुएंसर्स, द टॉप टियर इन्फ्लुएंसर्स जो स्किन केयर के बारे में इतना कुछ बोलते हैं कि दे नो सो मच अबाउट स्किन केयर एंड एवरीथिंग, बट दे डू नॉट टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स. Like, why they do not talk about the ingredients? They do not talk how much fragrance is bad for you. If you guys want a separate video on fragrances and everything, let me know, I will tell you that. But अभी के लिए मैं आपको सिर्फ बताती हूँ, fragrance is not something very good for your skin. It causes damage, and वो damage शायद आप अभी नहीं देख पाओगे, but then again आप जब कुछ सालों बाद आपको वो damage कर चुका होगा. So always see, जो भी fragrance word होगा वो top पे ना रहे. It has to be on the bottom. First जो ingredient रहता है, that is the maximum परसेंटेज उस प्रोडक्ट में, एंड देन द धीरे धीरे वो कम होता रहता है वो परसेंटेजेस. सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो फ्रेग्रेंस है वो लास्ट अप इंग्रेडिएंट हो, एंड अगर वो लास्ट इंग्रेडिएंट नहीं है, अगर वो कहीं टॉप पे टॉप 5 टॉप 6 आ रहा है अगर वो इंग्रेडिएंट्स, तो उससे तो आप बाहर ही जाओ, आप दूर जाओ उससे, बिकॉज दैट विल रूइन योर स्किन. अभी इंडिया में टू बी ऑनेस्ट देयर आर नॉट मेनी कंपनीज दैट आर डूइंग फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स. सो आपको बहुत सारे ब्रांड्स में आपको फ्रेग्रेंस मिलेंगे, बट देन यू नीड टू मेक श्योर कि द फ्रेग्रेंस इज द लास्ट इंग्रेडिएंट इन द full list and it is not in the top 5 or top 6 ingredients. कोई brand mention नहीं कर रहा है full ingredients list, तो आप please do not buy from that brand. And also if a brand mentions fragrances in their key ingredients, then you should definitely run away from that brand immediately. As I was saying, you guys should not be blindly following your favorite YouTubers. वो जो भी आपको बोल रहे हैं, please understand कि they are getting paid, they are doing collaborations, sometimes they are telling you, sometimes they are not telling you. So make your own research and then only buy a product, because why will you waste your hard-earned money to ruin your skin, right? So ऑलवेज डू योर रिसर्च. कोई भी आपको कुछ प्रोडक्ट आपको बोल दे तो उसके बाद आप तुरंत उसको खरीदने मत जाओ. ऑलवेज गो फॉर द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट, चेक अबाउट फ्रेग्रेंसेस, चेक अबाउट एसेंशियल ऑयल्स, बिकॉज एसेंशियल ऑयल इज अनदर बैड प्रोडक्ट. इट इज़ मोर बैड देन फ्रेग्रेंस. एंड कोई प्रोडक्ट में अगर एसेंशियल ऑयल्स होता है तो वो तो मैं खरीदती नहीं हूँ, एंड फ्रेग्रेंस होता है फिर भी खरीदती हूँ, बिकॉज फ्रेग्रेंस जैसे मैंने बोला कि इट इज़ नॉट, अभी मार्केट पे इतना प्रोडक्ट्स नहीं है जो फ्रेग्रेंस फ्री है, एटलीस्ट मेरे को नहीं मिले. सो मैं इसलिए अभी भी खरीदती हूँ फ्रेग्रेंस वाले, बट वो होते एकदम लास्ट में, सो उसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है. बट देन एसेंशियल ऑयल्स इज समथिंग जो आपको कभी 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 नहीं लगाना चाहिए अपने फेस पे. एसेंशियल ऑयल्स एक सबसे ज़्यादा ख़राब इंग्रेडिएंट है आपके स्किन केयर में. सो मेक श्योर कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसमें एसेंशियल ऑयल बिल्कुल भी ना रहे. वी द कस्टमर्स ओनली डिमांड ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द ब्रांड्स. सो आई होप द ब्रांड्स विल टेक नोट ऑफ दिस. आई डोंट नो वेदर दिस वीडियो विल रीच द ब्रांड, बट मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो ताकि सबको पता चले, आपके फ्रेंड सर्कल में, इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ वन पर्टिकुलर थिंग जो सबको पता होना चाहिए. एंड एवरी वन शुड गो एंड आस्क द ब्रांड्स डूइंग दिस शेडी प्रैक्टिसेस एंड आस्क देम टू स्टॉप एंड फोर्स देम टू डू अ प्रॉपर research and then put out their products in the market or just go out of business. So yeah, that was all I wanted to talk about in today's video. I hope you guys liked it and got to know something new, and I hope you guys would keep the little things that I told you about skincare today. And if you guys like it, let me know, comment and like on this video, तो मेरे को पता चलेगा कि you want to see more skincare videos from me, and I'll be doing them more often. And इसके बाद भी अभी मैं 2-4 स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्या आपके लिए अच्छा है क्या आपके बुरा है वो सब भी मैं ला रही हूँ. सो इफ़ यू आर एक्साइटेड देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो, like and comment, and please mention what all videos you would like to see from me next. And I love you guys so much. Please stay happy, please stay positive. I shall see you next time. Till then, take very good care of yourselves, and I love you. Bye.